उसके बाद उन्होंने प्ले किया मोहब्बत ही लौटाऊंगा। मोहब्बत ही लुटाऊंगा ना, मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ ऐसा ना, कैसा है ऐसा ट्रू मोहब्बत है आप कोई मोहब्बत ही लौटाऊंगा कभी मोहब्बत ही लौटाऊंगा के लिरिक्स भूल रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? मैं दोनों उल्टा कर देता हूँ और हर बार होता है, हर बार इट इज अनइमेजिनेबल। मैं हर बार इन लम्हों का तो फिर मुझे आता, हाँ मैं बराबर चल रहा हूँ। ओके कितना सुहाना अरे यार पहला अंतरा गा दिया यार पहला सेकंड अंतरा गा दिया पहली बार, अभी क्या गाया आई एम सिंगिंग, मैं दिमाग के अंदर वो सब चल रहा है। Hello and welcome to another awesome episode of Pop Rap. Today is a very very special episode because Snehil and I today in the studio are joined by one of the OG of the first ever Indian Idol in all of Indian history. Yes, sir. The one and only Abhijit Sawant. अभिजीत सावंत। थैंक यू यहाँ पीछे एडिट में क्लैप्स डाल देंगे। Yes. यही वो ट्रॉफी थी हाँ Yes. जिसके लिए मैं बेकरार था यार। Thank you. Welcome Abhijit. Thank We you. are very excited to talk to you. Firstly, how's it going, man? What's up? It's going well, good. I was touring a lot, तो अभी Great. ये महीने से थोड़ा मतलब थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। So you're touring all over India? Yeah, Oh, where all did you go? all over India, all over the world. Wow, where all did Yeah. you go? I've been to Singapore, US, और किधर गया था मैं? बैंकॉक क्या कहीं थे, और फिर एक और उज़्बेकिस्तान जाके आया। So, Abhijit, Chalo, yes. welcome to the show. Thank We'll you. get this going on the road. yes First up, of course, we have to talk to you about Indian Idol, right? The very first season. Yeah. That was the beginning of Indian singing reality shows. Yes. Yeah. Now they are everywhere. There are a Yeah. dime a अब dozen तो हर जगह with है। multiple hosts. Yeah. The हर judges जगह- change तो every हर year. जगह है। Exactly. लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे नीचे, सब। ये Yeah. कौन है, ये Yeah. इस फलाना का सारे Yes. धाना पीना कुछ भी चल रहा है। Exactly. कोई ना कोई सीजन का विनर। But that was the first. yes Yeah. So what was that like? Because we didn't have any idea as India, as a society, what to expect from the show. Yeah. What the feel is. I'm sure you guys are figuring it out also on Yeah, while it was yes. happening, the lighting, how the staging should be, how the performances should be. Yes. What was working with the judges like Sonu Nigam, Farah Khan, Arun Malik. What was that first season like? Actually, उसके पहले सारेगामा था। Correct. तो सारेगामा का प्रोसेस जो था वो एक नॉर्मल प्रोसेस था। यू हैव टू सेंड कैसेट्स टू देम, देन दे विल सिलेक्ट रैंडम कैसेट्स, वॉट एवर द प्रोसेस इज, एंड देन दे विल कॉल द फाइनलिस्ट एंड देन दे विल हियर इट एंड द जजेस विल चूज, द विनर जजेस चूज करेगा। तो ये प्रोसेस हमेशा रहा है, और हम लोग को भी लगा कि कोई भी कंपटीशन आएगा तो प्रोसेस तो सेम ही होगा, फॉर्मेट तो सेम ही होगा। तो पहले जब शुरू हुआ तो वी थॉट कि फराह खान है, विच इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वी नेवर सॉ a dance judge or choreographer as a judge in a singing reality show. Exactly, yes. उसके पहले कभी हुआ नहीं था ये। Yeah. तो वो भी एक था कि तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये लॉटरी है टाइप्स, कि ये कुछ तो ऐसा है एक बम्पर वाला गेम है जहाँ पे जाइए सुनिए, एक दिन का ऐसा मेला वेला कुछ होगा। यही मैं एक रैंडम ख्यालों में था उस टाइम में। एंड देन बट बिकॉज बिफोर दैट वीवा भी होके गया था, आसमा भी हुआ था, which was actually same format, जिससे नया बसीन आई। Oh, these were also singing reality shows? Yeah. Okay. But that is not vote-based reality show. Oh, So got you it. can Judges say, based. yeah, Okay, the okay. vote-based reality show This is- started from yeah. Indian Idol. Indian उसके Idol. पहले एक जी पे आया था, वो था ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। Okay. Oh. But it wasn't तो singing, that was yeah. the first Yeah. one, उसके बाद तो reality आई show. कांट, इतना प्रेशर हुआ Yeah. होता होगा बिकॉज यू हैव टू बेसिकली आस्क फॉर वोट्स टू सपोर्ट योरसेल्फ। Yeah. What is week on week like? I remember those Yeah, I videos। remember पता है? that, Yeah, वो videos हम लोग Yeah. पता है आपके हर एड ब्रेक में वो वीडियो Yeah. आता था कि आप और Yes, जब आप गाना correct. गा रहे थे तो नीचे Exactly. लिखा हुआ आता था टू वोट फॉर दिस Yeah, yeah, गाय, yeah, SMS yeah. ये इनिशियल्स आपके टू दिस नंबर। Yeah. और हम लोग ना पता है कि आपको बताता हूँ, एक बारी ना मम्मा वोट करने बैठी एंड देन शी इज लाइक, हो 5 रुपए लगता है वोट करने। उस टाइम Yes, बहुत correct, महंगा correct, था correct. यार, Yes. सच में बहुत महंगा हुआ करता था। और मैं ना बहुत छोटे छोटे रिमोट एरियाज में भी जाता था ना परफॉर्म करने के लिए उन दिनों।
तो जाने के बाद लिटरली लोग आते थे कि मेरे घर का 1 महीने का राशन तूने खा लिया। 5 में पैसा वोट कर रहा है। Oh God. अब तू नहीं जीता ना। Yes, 1 correct. महीना घर पे कुछ दाल चावल नहीं आएगा फोन के बिल की वजह से, that kind of days also. But then did that increase the pressure, or was that like a sense of camaraderie, like दोस्ती वोस्ती ज़्यादा बढ़ती है कि we are going through the same experience, all of us? No, at the end of the day people used to laugh like this, हाँ. so Okay, sure. there was no Yeah. pressure on that. हाँ, correct. कि चलो ठीक है यार, good fun, it is, everything is happening in good fun. Yeah. Sometimes media used to hamper a lot. Okay. Media should हाँ. take us into a proper trap, और क्योंकि एक sensational news बनाना है, Correct. तो कुछ मतलब वैसा कुछ तो ढूंढ के वो लोग लगा देते थे. But otherwise audience was always been very supportive. एंड दैट वे बहुत अच्छा ही था. वो प्रेशर कभी हुआ नहीं था. प्रेशर ये चीज़ का हुआ करता था कि हो क्या रहा है, यू नो, टू अंडरस्टैंड दिस होल गेम. यू नो, यू आर just 6 months before, you are just playing cricket with your friends, you know, इधर उधर हाफ पैंट में चल रहे हो, पूरा कॉलोनी में घूम रहे हो. उधर से निकल के 6 महीने कट करके, यू नो, अमिताभ बच्चन मिल रहे हैं तुमको, और वो सब हो रहा है. So उससे पहले आप सिंगिंग के शौकीन नहीं थे? मतलब I was learning music. मैं फुल अपने गुरुजी के साथ बैठ के प्रॉपर, एक्चुअली मैं तो अपने गुरुजी के यहाँ रहता भी था. तो मैं तो 5-6 साल में वैसा सीखा है म्यूजिक. तो एक प्रॉपर मतलब म्यूजिक में ही करना था करियर. लेकिन दैट टाइम किसी ने हीरो वाला जो ये है ना इमेज, वो किसी सिंगर का दिखा नहीं था. उस सिंगिंग स्टार जो था, यू नो, यू कैन टिल कैरी समबडी टिल सोनू निगम, वो एक स्टाइल में आएगी. लेकिन नोबडी एक्चुअली वोटेड फॉर समबडी, एंड यू नो, सो that person has to be from there, you know, वो क्या बोलते हैं, उनसे उनके बीच में से एक होना चाहिए. जी बिल्कुल. You know, makes sense. तो वो सब था. When the 3 judges were there, like, so it was Farah Khan, Sonu Nigam and Anu Malik, right? Yeah. You could see kind of that, oh, Sonu Nigam probably is here to judge the singing talent, right? Anu Malik is here to judge maybe the tone and whether you're sticking to the tune or not. And Farah Khan is there for the performance sake. Yes. Like whether you're performing the way you should be performing. What was that dynamic like for you as a performer? When you're there on stage, do you think the feedback that they used to give was actually helpful, or एक्चुअली हुआ क्या था, वो जैसे मैंने उस एरा के बारे में बात किया ना, तभी रोडीज भी नया शायद आया. ये सब शोज बहुत नए थे. वीवा से जो मतलब जिसमें अपने नेहा भसीन ये लोग सब थे, तो बहुत बड़ा पॉपुलर शो था तभी. तो उस टाइम में हम लोग एज अ सिंगर, बिकॉज हम लोग म्यूजिक सीख रहे थे, तो एक बहुत बड़ा एक कहें तो ग्रुप था, जो लड़के, यू नो, मुंबई के सारे सिंगर्स ग्रुप. तो हर कंपटीशन में इधर भी दिखे जाए, उधर कैसा तू, अरे मैं भी ठीक है, तू कैसा, अरे ठीक है, ओके, क्या कैसा लगा, अच्छा. तो यू नो, वी न्यू ईच अदर टाइप, यू नो. वो एक ग्रुप जो है वो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट रहने के लिए होता था. तो वो सब चल रहा था. तो मैंने पूछा कि क्या है, तो आसमा चल रहा था. अभी आसमा, वीवा, आसमा आया था. वीवा पहले सब लड़कियों का था ओनली, और आसमा जो था वो मेल फीमेल था. Palash Sen was the judge also, one of the judge. हाँ. मैं वापस से अपना शो हो गया था यार. तुम लोग वीडियो प्लग करो क्या वापस से? तुम लोग शायद मतलब देखा नहीं हो, तुम लोग बहुत ही छोटे हो गए तभी. सॉरी, मैं एकदम से मुझे इंडियन आइडल फर्स्ट सीजन तो देखो पूरा याद है, बिकॉज जो वो एक नेशनल इवेंट बन गया था. दिस इज आवर हिस्ट्री. Absolutely, we actually feel a lot of people in our generation have followed your career because Indian Idol was in front of us, right? So we have like by default. So that time actually they were like completely performance oriented. Singing था. तो मैं जब इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट लिया ना, तो मुझे
मैंने एकदम डांस क्लास वास भी लगा लिया था। एकदम फुल ऑन ब्रो, फुल ऑन। मैं तैयारी करके जाऊंगा, मोहब्बत कर ले ऐसा सब स्टेप में बोला था, मैं फाइट से मुंह पे मार सकता है। तो उस तरह से मैं प्रिपेयर्ड हुआ था। Were other singers also doing the same, or was it just you? Most of them was actually not doing that. They had no idea about it कि एक्चुअली ऐसा करना पड़ेगा क्या ये। तो आप पूरा रॉक स्टार बनने का प्रिपरेशन करके जा रहे थे? हाँ, मुझे ये समझ में आ गया था कि अब टाइम चेंज हो रहा है, एंड दे डोंट वांट समबडी जो सिर्फ खड़ा रहे माइक पकड़ के और गाना गाए। तो वो कल्चर से वो लोग को बाहर निकलना है, यू नो। और वो मैं इसलिए नहीं पता चला कि फराह खान बैठी हुई है, लेकिन आई न्यू कि जब मैं कंपटीशन में यू नो पार्टिसिपेट कर रहा था या ट्राई कर रहा था ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट पता चल रही थी। अंडरस्टूड। तो इसलिए प्रेशर परफॉर्मेंस का कभी रहा नहीं। और एंड बिफोर दैट आल्सो थोड़ा सिंगिंग में था, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ स्मॉल शोज, तो वो प्रेशर नहीं था। आपने आई रिमेम्बर योर ऑडिशन, द फर्स्ट सॉन्ग वाज हर घड़ी बदल रही है, ये है ना? वो लाइक मम्मा ना यूज्ड टू बी लाइक कि आई थिंक यू वर वेरी यंग, लाइक 21 22, तो मम्मा यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक आइकन चाहिए, पता है, इंडियन आइडल को लेके, बिकॉज वो पूरा टाइम घर पे थी, वो पूरा टाइम देख रही थी। तो व्हेन आफ्टर यू रीच लाइक टॉप 10 द गाला राउंड, एंड शी यूज्ड टू बी लाइक देख, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ सिंगर है, ये है, वो है। मैं छोटा बच्चा, मुझे क्या पता, इट्स माय फर्स्ट रियलिटी शो जो मैं देख रहा हूँ। बट मॉम यूज्ड टू बी सो इन्वेस्टेड, शी यूज्ड टू बी लाइक देख स्नेल, मैं बताती हूँ तुझे, क्योंकि और तो कोई है नहीं उनके पास बात करने के लिए। लाइक इंडियन आइडल का मतलब पता है क्या होता है? जो हर चीज में पूरा हो। इन 10 में से अगर मुझे फैशन देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, ये लड़का ऊपर तक जा सकता है। लाइक ओके। एंड आई रिमेम्बर द फाइनल नाइट, आई थिंक 12 बजे के करीब रिजल्ट आए थे रात को, एंड हम लोग ने ना डिनर पे जाना था उसी रात को। पापा ने प्लान बना लिया, मम्मी को नहीं पता था। ठीक है, मुझे लाइक चलो डिनर पे चलते हैं, कनॉट प्लेस जा रहे हैं दिल्ली में, ठीक है। एंड शी इज लाइक आज कहाँ जा रहे हैं? आज कहीं नहीं जा रहे हैं, आज हम यहीं बैठे हुए हैं। एंड आई रिमेम्बर मैं सोफे पे बैठा हुआ, एंड एवरीबडी इज लाइक कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे करके बैठा है। पूरा मोहल्ला जो है शांत है, एवरीबडी इज वाचिंग इंडियन आइडल। आपके घर पे क्या माहौल था जब उस रात जब रिजल्ट आई हैड नो क्लू। मैं तो कंपटीशन में था, तो मुझे भी मतलब मेरी मेन जो फैमिली लाइक डायरेक्ट फैमिली है, वो तो सब बैठे होते स्टूडियो में, एवरीबडी सोच ही रहा था। बट एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक्चुअली बहुत फनी थिंग है। तो जब फिनाले में आ गए थे हम लोग दोनों, मैं और अमित साना, तब मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया था कि प्लीज डोंट वोट फॉर मी, ऐसे। क्यों? तो मैं सबको बता रहा था कि प्लीज, अब मम्मी फोन करी, फाइनल में आ गए, अब तो अभी जान लगा देंगे, अब तो जीतना ही है तेरे को। और मैं बोल रहा हूँ नहीं मेरे को नहीं जीतना है। नहीं मम्मी प्लीज मेरे को नहीं, मैं नहीं पढ़ने वाला है सब में। पर व्हाई, व्हाट वाज द थिंकिंग? बिकॉज़ तब तक ना एक तो शो बहुत बड़ा हो गया था, और हम लोग मतलब जहाँ पर भी जाते थे ऐसा, मतलब क्या बताएं, अलग ही भीड़ होता था। सो समवेयर कहीं से उड़ती हुई चिड़िया जो बोलते हैं ना, वो खबरें आई कि यार अगर जीत गए तो ये लोग तो पिस देंगे तुम्हें, यू नो, तुम कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाओगे, कुछ लीगल रहेगा, तुमको कुछ सालों का ऐसा लंबा कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। हालांकि वो कुछ रहा नहीं वैसा, मच बेटर था एक्चुअली। तो वो यू नो व्हेन यू हैव नो आइडिया कि कैसा होने वाला है, क्या दिखेगा कल फूड आगे का चीज भी, उसके बीच में आप उस लेवल के पे तो पहुंच ही गए हो कि जो जिंदगी में नहीं सोचा है। करेक्ट। अब उसके पास और एक पायदान है ना, ठीक है, नहीं भी मिला तो भी यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू नो। सो दैट वे इट्स बेटर टू नॉट यू नो टेक दैट रिस्क एंड हैव अ सेफ प्ले काइंड ऑफ, एंड अपना करियर अलग से बनाओ, then you can have your own career to, you know, work on it. So then if you can like give us an idea, Indian Idol ends, okay, and now Abhijit Sawant is the winner of Indian Idol 1. Yeah. How does life change immediately in the next, say, month? In like the next 1 month, how does life change after you're the winner of the first ever Indian Idol? Life तो completely you know अलग ही हो गया था. But many people have asked this question to me. Many मतलब many, बहुत सारे लोग.
बट मुझे, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आई डोंट रिमेम्बर दोज डेज ओनली, यू Okay. नो, Oh. because it was Becomes too so, yeah. hectic. एक I के get बाद एक के बाद एक के बाद एक कोई There ना was कोई चीज. incidents happening Yeah. every second minute, you know, कुछ ना कुछ हो रहा है. Hmm. आप मतलब, मुझे याद है, मैं जीतने के बाद घर आया तो सब घर के बाहर सब लोग खड़े हैं टू वॉच, Wow. यू नो, इट इज लाइक वर्ल्ड कप जी. विनिंग मोमेंट, यू नो. हाँ हाँ. I must सब have felt so रास्त amazing. कॉलोनी में सब Yeah. लोग आए हैं बाहर से, कोई बैंड वैन जो लेके आए हैं. Were your parents Wow. like so excited? Must have been Yeah, jumping yeah, everywhere. I can just They imagine. were like very cool people. They are like, मुंबई ठीक है, अरे ठीक है, हो गया. अपना लड़का अरे है, अपना- चलता अब है. मेरा लड़का जो जीतेगा ही मेरा लड़का, और क्या अपना ही करेगा? तो है, उसमें क्या है? अपना कोई जाएगा तो हार के थोड़ी आएगा. हाँ, Right, ऐसा. right. अपना जीतना ही था ना भाई, ऐसा वाला. तो वो लोग को ठीक है, ऐसा कोई इतना इशू नहीं था. That's great. बट बहुत हेक्टिक रहा. जी. मतलब यू नो, समटाइम्स इवन ऐसा होता था कि आई एम कहीं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो फिर आता था, मैं गाड़ी में 2 घंटा सोता था सिर्फ घर के नीचे, एंड देन अगेन गाड़ी लेके Oh. एयरपोर्ट. या सो आई Oh, यूज्ड टू wow. ट्रैवल लाइक दैट. एंड तो ऐसा जब आपका इतना क्रेजी डेज चल रहा था, तो ऐसे कोई ऐसा परफॉर्मेंस ऐसा हुआ जिसमें जैसे आपने वो फैन एनकाउंटर्स अगर कोई ऐसे हुए, जैसे Yeah. वो आपने बताया कि एक ने कहा कि तू महीने का राशन खा गया. But वैसे कोई आफ्टर यू वन ऐसे परफॉर्मेंसेस पे जब आप लाइक द एंटायर इंडिया वाज क्रेजी आफ्टर यू वन, तो ऐसे कोई एनकाउंटर्स रहे क्या आपके फैंस के साथ? बहुत रहे, बहुत अलग अलग रहे, क्योंकि कहीं कहीं पे तो लोग मतलब ऐसे बुक लेके आते थे, तो उन्होंने पूरा एक एल्बम बनाया हुआ होता, और बहुत सारे अच्छा. हैं अभी भी, मुझे बहुत सारे भेजते हैं. किसी ने कोई एथलीट थी, उसने अपना गोल्ड मेडल मुझे भेजा था. हाँ, Oh wow. तो वाओ. या, और बहुत अलग अलग. एक बार तो मतलब बहुत फनी है ये चीज़. मुझे एक्चुअली सीरियस ज़्यादा मैं ये नहीं रहता हूँ, तो एक्चुअली स्टोरी में हुआ क्या, एक्चुअली मेरी जो बिल्डिंग है, तो उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर है, ऐसे हम लोग दोस्त लोग बैठ के गप्पे शप्पे मारना हाँ, रेगुलर ऐसा काम होता था. हाँ हाँ हाँ. ये आइडल हुआ था. ये छोटी बिल्डिंग है, 3 माले की बिल्डिंग है हम लोग की. तो एज यूजुअल एक दिन था, फ्री में हम लोग बैठे हैं नीचे, गप्पे वप्पे चल रहे. 2 लड़कियां चल के आती है, अंदर चली गई बिल्डिंग में, और मेरी बाइक सामने थी. तो मैं ये साइड में था, तो यू नो, तभी की लड़कियां तो और भी ज्यादा कि अरे लड़कों का ग्रुप है तो देखने का नहीं, यू नो, ट्राई टू अवॉइड दैट sure, ग्रुप, टवाल खोल रहेंगे, यू नो. Sure, sure. तो वो थोड़ी देर बाद वापस आई तो बाजू में बाइक है, उसको ऐसा पोंछा उसने Huh? अपने Huh? दुपट्टे से. Wait, she knew it was your bike. या Oh, अच्छा. मतलब random Wow. bike को नहीं किसी नहीं से- नहीं, ऐसा पोंछा एकदम, यू नो, एकदम Wow. प्यार से. हाँ, थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, एंड देन शी वेंट. सो बोला यार क्या हो क्या रहा है ये लाइफ में, हो क्या रहा पीछे है. खड़े होकर आराम से देख रहे हैं. हाँ, मैं बाजू में बैठ Oh, के देख he's रहा हूँ like, ये oh, you सब. missed a spot. Yeah. बाकी है, वहाँ पे ठीक से खड़े. वो टायर है पीछे का. Wow. What a thing, yeah. Yeah. Did you So, form any friendships that have maybe survived till today? on है show? कुछ लोग हैं. Yeah. एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो तभी यंग कॉलेज में थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, यू नो. Yeah. तो वो जो आज अच्छे पोस्ट पे है, यू नो, हाँ हाँ हाँ. दे आर ऑन गुड पोस्ट, कहीं अच्छे जॉब पे है, एंड इट फील्स नाइस, यू नो, Yeah, of course. कि वो तभी एक Yeah. फैन, एक क्या बोलते हैं उसको, पागल फैंस भी थे, लेकिन अपना करियर भी उन्होंने अच्छे से सेट किया है. Absolutely, सो हमेशा ये हाँ. बोला जाता है ना कि हाँ, हाँ, हाँ. यार ये लोग तो फैन बन के रहेंगे, हाँ. उनके पोस्टर है दीवारों Yeah, पर, yeah, yeah. यू नो, दोज पीपल. बट इंडियन So- आइडल के दौरान, जब इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के साथ आपकी कुछ ऐसी दोस्तियां रही हैं जो अभी तक हों आपके साथ, या उस टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हो? मेरी अब तक प्राजक्ता के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है. ओह. प्राजक्ता से मतलब कभी कभी बात होती है, वो हम्म, पास में ही रहती है. अच्छा. सो और शायद मुझे सबसे पहले वो लगा था कि प्राजक्ता कैन विन द शो. Wow. या सो सबसे पहले अगर कोई मतलब पॉसिबिलिटीज लगी थी जो विनर हाँ, हो हाँ. सकती है, तो उसमें प्राजक्ता थी. फिर बाद में बाकी सारे तो, बट या शी वाज वन ऑफ द वेरी हाई पोटेंशियल पर्सन. नाइस. So then after you leave, Yeah. and then you start, because I imagine, at least this happens in comedy, right? या In comedy, you can meet your heroes very easily.
It's very easy to because it's all the closed circuit. Everyone knows everyone. Yes. So you could be on the same show as the biggest comedian in India as well as the smallest comedian in India. Right. So what happens when you start meeting your heroes? Like I'm sure that happened soon after Indian Idol. Of course, you already met Sonu Nigam and Anu Malik and Farah Khan, but then after that. I personally believe that वो जो कहावत है ना कि you should never never meet your your heroes. You know? Correct. तो वो सही है. Oh God. Okay. तो वो मुझे लगता है कि हर साइड से सही है. अच्छा. हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये मुझे ऐसा लगा कि व्हेन फैंस एक्चुअली वो एक बाउंड्री जब टूटता है ना, एक फैन एंड स्टार या जो भी कहिए उनके पसंदीदा एक्टर का कैरेक्टर का, वो जब टूटता है तो बाद में फैमिली या बाद में नेचुरल रिलेशन शुरू हो जाते हैं. Correct. और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. आपके और मेरे अलग अलग है. ये बाउंड्री जब खत्म हो जाएगी, हम लोग जब एक दूसरे का और ज्यादा रिलेशन में या फ्रेंडशिप में आ जाएंगे, तो फिर वो वहाँ चला जाएगी चीजें जो कि शायद कंफर्टेबल एक किसी को ना हो. ट्रू. तो मैं भी कहीं इवन ऐसे बड़े बड़े स्टार्स से मिला और मुझे लगा कि यार दे आर सो गुड, इतना हम लोग उनकी म्यूजिक से सीखे हैं. या जब उनके वो सर्कल के अंदर घुसने लग गया तब पता चला कि यार ये अलग चीजें हैं. दुनिया गोल है. So you easily can get distracted और क्या कह सकते हो, disheartened. तो आपने अभी ये भी कहा था कि लोगों ने आपको बहुत डरा दिया था कि अगर तू जीतेगा तो ये हो जाएगा, करियर you get trapped in the contract. Yeah. So how was it different? Like what had you thought the industry is going to be like? Actually तभी क्या था कि शो ही इतना नया था ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी चीजें भी नहीं थी, तो हम लोग उसमें बहुत बच गए. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. ना हमें पता है साइन कैसे करना, उन्हें पता है कि क्या करना है, कितना मांगना, कितना यार, कितना परसेंट रख के. अब सबको दिमाग आ गया कि अरे काम करे इतना डालो, ये तो इतना कमा रहा है. I've also heard things about just recently I was watching some video about how there is a massive pay disparity between how singers are paid in the industry versus how composers are paid in the industry versus how lyricists are paid in the industry versus the big budget of the movie or project or what have you. Apparently, this is what I've heard. Please correct me if I'm wrong. That singers are paid next to nothing when you're singing for Bollywood. The hope is that the song will become a hit and then you can earn from live shows. But what if that never happens? ऐसा होता है क्या? Is this actually true? See, the thing is, I will put it this question or this answer actually कि जो पैसा मिलता है प्लेबैक से वो काफी नहीं है for any singer. Exactly. तो अभी अगर सपोज मान लीजिए मैं आज जिस लेवल पे खड़ा हूँ, मेरे लिए शायद 10,000 is also good money. Somebody जो एक 50 करोड़ के आसपास का म्यूजिशियन या मतलब 5 लाख का है वर्थ, आई एम सेइंग, एक अच्छी बड़ी वर्थ है, उसके लिए 10,000 इज लाइक नथिंग. आई एम गेटिंग नथिंग. मेरे लिए शायद 10,000 बहुत बड़ी बात हो सकती है, मेरे से नीचे के लिए 10,000 तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकती है ना. तो वो है इट इज. तो सामने वाला, और क्या है ना, इट इज अ प्राइवेट फर्म. इट इज नॉट विच इज अ कॉर्पोरेट फर्म कि भाई सबका एक जो है सिस्टम चल रहा है. यहाँ पे हर आर्टिस्ट का रिलेशन पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. बेसिकली सब्जेक्टिव है. इट इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते. आपका और मेरा सपोज मान लीजिए एक प्लेबैक सिंगर का और एक म्यूजिक डायरेक्टर का रिलेशन कैसा है, एंड बिकॉज आर्ट फॉर्म ही भावनाओं का गेम है. इट इज अबाउट फीलिंग्स. सो इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू. That's true. That's normal. Correct. तो मतलब अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आप बना के रखे हुए हो, तो वो ये नहीं डालना चाहते चीजें, वो जो बिजनेस चीजें वो ज्यादा ऐड नहीं करते इसलिए. और सिंगर को थोड़ा सा ज्यादा लूजिंग साइड सिंगर की ज्यादा होती है, तो दैट्स व्हाई ये होता है. How do you balance this side though? Like how do you balance the business side with the creative artistic side? मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे इसके साथ काम करना था, ये गाना बहुत अच्छा है, बट देन यू नो कि ये यहाँ पे वो मॉनेटरी फैक्टर जो है वो विल टेक अ बैक सीट.
It is difficult. It is actually, it is not that easy. क्योंकि I have realized कि जो म्यूजिक में सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, अभी जो भी प्लेबैक कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक रिलेशन कैसा है एक दूसरे के साथ. जी बिल्कुल. आप उसको जो भी नाम दे, लेकिन एक फ्रेंडली सर्कल में काम करना सबको अच्छा लगता है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में. और वो हमेशा एक म्यूजिक डायरेक्टर का कहिए या एक फिल्म डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का होता है अपना. हर किसी का अपना एक खुद का डैन है, एक तरीके से एक डैन है. तो वो डैन में ही वो लोग चाहते हैं कि भाई ये लोग अच्छा है, चलो यार मुझे कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो मैं पूछ सकता हूँ, कुछ नहीं चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, है ना. अगर हम लोग उसको एक कॉर्पोरेट साइड से समझने की कोशिश करें ना, देन इट बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट एंड लुक्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. बट ये यहाँ पर वैसा नहीं है, यू नो. ये धंधा ही ऐसा है. तो मतलब दूर से जो प्रॉब्लम दिखती है, शायद पास जाके इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स अलग है, अलग प्रॉब्लम्स है. बट नाउ दैट एक चीज जो म्यूजिक के बारे में जो मुझे आपसे जाननी है वो ये है कि नाउ दैट सोशल मीडिया जो है वो इतना बड़ा ड्राइविंग फोर्स है म्यूजिक को लेके. पीपल आर मेकिंग सॉन्ग्स कि ऐसे सोच के कि यार इसका ये हुक रील पे आ जाए तो एक बार ये सॉन्ग आगे निकल जाए, ये फेमस हो जाए. तो लाइक आप, जैसे मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने कहा था कि आप 11 साल की उम्र से म्यूजिक में आपकी रुचि थी और आप उसी में करियर बनाना चाहते थे. तो आपका म्यूजिक बनाने का प्रोसेस सोशल मीडिया के इस सुनामी के बाद चेंज हुआ है, या आपने सोचा है कि यू नो मैं भी रील्स के हिसाब से बनाता हूँ तो गाने वायरल हो जाएंगे या ये हो जाएंगे, या अभी भी आप अपने ओरिजिनल प्रोसेस पे ही? I don't deny this thought of कि यू नो कि ये तरीका है. मतलब ये तरीका का हो सकता है कि फास्ट करना चाहिए या गाना छोटा होना चाहिए, मुखड़ा छोटा होना चाहिए. आई डोंट डिनाई दैट प्रोसेस. आई पर्सनली थिंक कि हर टाइम हर ज़माना अलग अलग होता है. टाइम चेंज, और म्यूज़िक एंड वोकैबुलरी और म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, ये दो चीज़ें हैं जो टाइम के साथ बदलती रहती है, है ना. एंड ड्रेसिंग्स भी बोल सकते हैं हम लोग. तो वो होते रहना भी चाहिए. उसमें हम लोग अगर कम्प्लीटली मैकेनिकल बन जाए तो फिर हम लोग एक मतलब वो 4 चीज़ें जो कमर्शियल तरीके से ही लेंगे और कमर्शियल तरीके से ही बनाएंगे. ये बीट चल रहा है तो वही डालेंगे. बट इफ़ यू आर getting inspired by some ideas or something and then using something अपने ideas, तो उसको एक कलर मिल सकता है, ना. जैसे वीकेंड जैसा आर्टिस्ट का म्यूजिक है, ना. इट हैज दिस कमर्शियल माइकल जैक्सन फील आल्सो, बट एट द सेम टाइम समथिंग सुनने के लिए भी है. उनका खुद का ओरिजिनल भी है, उनका खुद की भी एक चीज है. A lot of people from the industry also have come out and said कि you know म्यूजिक का प्रोसेस इंडस्ट्री में कितना चेंज हो गया है. पहले a lot of people have said कि you know पहले एक्टर आता था वो हमसे समझने के लिए आता था, सीखने के लिए आता था हमारे, बट अभी जिसको म्यूजिक का सेंस भी नहीं है वो भी हमें इनपुट्स दे रहा है कि ऐसे करो वैसे करो. तो ये डायनामिक्स एज अ म्यूजिशियन, हाउ डू यू हैंडल दीज डायनामिक्स कि जिसको आपको भी पता है कि यार फॉर दैट मैटर इस इंसान को नहीं पता. अब मैं अगर आपको म्यूजिक के बारे में बताने लग जाऊं कि नहीं यार जो गाना तू मेरे लिए गा रहा है ना उसमें मुझे ये अच्छा चाहिए, ये ऐसा चाहिए, एंड यू विल बी लाइक कि तुझे क्या पता है म्यूजिक के बारे में यार. सो लाइक हाउ डू यू डील विद दैट डायनामिक्स कि you know that this person is probably not that well versed with music and the information knowledge of music, but you might have to comply to that, आपको मानना पड़े. Or maybe you're just thinking कि good ideas can come from anywhere. So what is your actual actually there are 2 points. और मैं भी उसी तरह से, मतलब I have seen people who are very angry मतलब वो लोग यही बात कर रहे थे कि अरे ये क्या है, ये आता है यार, हमें बता रहे हैं म्यूजिक में ये चाहिए वो चाहिए. तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत सारे आर्टिस्टों का. एट द सेम टाइम ये दूसरे बहुत सारे आर्टिस्टों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई वो लोग ही पैसा दे रहे हैं, नो. हाउ ही इज सेइंग कि अगर यू नो ही स्टार्टेड गिविंग मी इनपुट्स, आई विल डेफिनेटली नॉट हियर इट.
Yeah. बट वही अगर ये पैसे लेकर आएंगे सुनना और पड़ेगा। बोलेंगे गाना मैं बना रहा हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए, हाँ, तो लेना ही पड़ेगा ना Correct, इनपुट्स, yeah, यू नो। true. तो वो उसमें बहुत फर्क आ जाता है, वो Correct. सारी चीज़ों में फर्क है, Correct. यू नो। तो सामने वाला हम एंड एट द सेम टाइम समटाइम्स उसको कैसे डील करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन यू नो कंप्लेनिंग अबाउट दिस सिस्टम। Absolutely. या क्योंकि आप म्यूजिक बहुत ज़्यादा एकदम ही उनके तरह वो जो सोचते हैं वैसे ही बनाओगे तो फिर वो कमर्शियल रंग में ज़्यादा दिखेगा, यू नो। या फिर हो सकता है कि यू नो बिकॉज उनको वो लोग म्यूजिक नहीं बना रहे, वो जी, अपना बिल्कुल। थॉट दे रहे वो हैं। अपना थॉट दे रहे हैं। वो हाँ, थॉट और उनका इसका हाथ, यू नो, दोनों चीज़ें अलग है, तो वो एक मिक्सचर बनेगा ही सही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो डिफिकल्ट पार्ट है, यू नो। Can I ask you a little like not private, like a little more fun question? या Like, do musicians have to? I imagine you have to worry about your voice a lot. या Right. yeah. So are you able to like go out and get drunk, like crazy drunk? Oh yeah, Like, man. Yeah, can you smoke and shit? Yes, Is that fine? Can you smoke and all? Is that fine? If you ever want to, I don't know if you do, but if you ever want to, yeah. it's not a problem. मतलब people I've seen people doing that. Yeah. Like देखो बाकी सब ठीक है, दारू अपनी दारू जगह है। दारू अपनी हाँ, जगह। शराब तो Yeah. यार शराब मतलब अपनी जगह है। respect भाई, respect But then do you वाला have like a वाला। system कि okay, tomorrow if I have to perform somewhere, Yeah. then maybe a night before ऐसे कुछ है? कि नहीं maybe I नहीं won't. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। You don't have. I am that way, I am very controlled. Okay. तो मतलब अगर है तो सही है, मतलब वी एंजॉय, बट अदरवाइज नहीं है तो इट इज ओके, इट इज मतलब as long as काम के साथ हिंडर नहीं कर रहा है। हाँ. या Yeah. एंड It's आई एम fine. वेरी हेल्थ कॉन्शियस। Fair. तो Okay. हाँ, तो मुझे ऐसा कुछ भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर अरे यार ये सर दुख रहा है यार, मुंह खराब हो रहा है, देन मैं नहीं एकदम से डिटॉक्स में चला हाँ. जाता हूँ मैं, देन आई ट्राई टू Oh. कंट्रोल माय, यू नो, ये सारी चीजें। You know, तो मेरे वो सब मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका ना फिक्स्ड है 2 हाँ. पैक। दो पैक। हमेशा। वो कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी पार्टी में, he will like एक डलवाएंगे लेंगे, फिर दूसरा डलवाएंगे लेंगे, एंड देन उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उनको हाँ. तीसरा पैक नहीं दिलवा सकती। I get it. हाँ यार, वो कंट्रोल बहुत मैंने नहीं देखा जबरदस्त यार। कंट्रोल है। वो सच में अच्छी चीज है यार, मुझे नहीं आती, वो करना चाहिए लाइफ में। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। काफी जी, काफी बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व। एंड जब भी मैं उनसे कभी बात करूँ ना कि देखो अच्छा नहीं होता है ये करना वो करना, लाइक देख स्नेल, किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं होता है। हाँ, मैं कंट्रोल में ले रहा हूँ तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। सही God. में। So what is the singing community like? Singing community. Singer community. हाँ. Like what is like हाँ. in the industry? Do you? Wow, it's a very unique No, no, question, man. But- But सही में। Okay. But I mean it in all the friendly way. I don't mean Yeah, I don't mean to I get any understand. dirt and Yeah, all out of it. But like, are they supportive? Are other singers supportive of other singers? Do they celebrate other talent, new talent? What's it like? We enjoy. Yeah. Enjoy. I personally, if I'm talking myself, I enjoy other music. Yeah. तो आई डोंट सेलिब्रेट, आई वुड से, क्योंकि सेलिब्रेशन में फिर वो पोस्ट करना भी आ जाएगा, जी. हाँ. यू नो। तो है. तो मैं उतने पोस्ट नहीं दिखता हूँ लोगों के, nice. दूसरों के म्यूजिक के बारे में। वेरी रेयरली, इट्स अ गुड वर्ड एक्चुअली टू से कि यू नो सेलिब्रेटिंग द म्यूजिक। Hmm. तो ये बहुत रेयर होता है, Hmm. बट होता है, ये भी ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट एक इनसिक्योरिटी सब में है। मतलब मैंने हाँ. As an टॉप क्लास artist, में भी देखा yeah. है और नीचे भी देखा है। जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें इस चीज़ों के बारे में बहुत होती कि अरे यार, अरे ये देखो इसको, ये ऐसा कर रहा है, वो उसका वैसा हो रहा है। So have you that- met people though who are like extra supportive, maybe towards you, or who have helped you, like really like embraced you and your talent and really gone out? आई डोंट रिमेम्बर एनीबडी जो सच में ऐसा हेल्प किया है मुझे इन द इंडस्ट्री। हाँ, नहीं पता मुझे। Does that help if you have someone like that in the industry pulling like the strings for you? Yeah. It Yeah? helps a lot. Yeah, it helps a lot. But it depends. Actually, मैं कहूँगा कि I am not that friendly guy also. So that is my problem. But जो लोग friendly है Hmm. या ग्रुप्स में है, वो
उनको बहुत एक दूसरे के साथ एक सब सहारा मिलता ही है, you know, you learn also a lot of things. बट You know, you दैट्स understand. आपने कई जगह ये बात बोली भी है कि मैंने शुरू से अपना रास्ता खुद ही बनाया है. Yeah. बिकॉज एज आई वाज रीडिंग समवेयर वेयर यू वर लाइक कि मैं शुरू से पेरेंट्स वर नॉट ऐसा कि यू नो गेट अ करियर इन म्यूजिक. Yeah. आपने टीचर भी खुद चुना, Yeah. क्लासेस के लिए भी खुद, सब कुछ आपने Yeah. खुद किया. तो व्हेन यू केम इनटू द इंडस्ट्री एज एन आउटसाइडर ओनली एक Yeah. तरीके से, Yeah. तो वो चीज़ आपको, आपने अभी तक सब कुछ कॉन्कर किया खुद अकेले अपने Yeah. दम पे. जब इंडस्ट्री में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे देयर इज दिस कॉमन थिंग कि लोग उतना वेलकमिंग नहीं होते आउटसाइडर्स को बिल्कुल. लेके, Yeah. तो डिड यू फाइंड एनी प्रॉब्लम टैकलिंग दैट एंड कॉन्करिंग दैट हर्डल ऑल्सो? एक्चुअली मेरे लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा, मतलब मैं इतना ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, बट इतना भी क्रेडिट खुद को नहीं देना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इंडियन आइडल ख़त्म हुआ ना, तो इतना बड़ा बन गया था वो शो, और वो पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी बन गई थी ना, तो वो कहीं पर मतलब क्या कहे, इजीली टेकन नहीं थी लोगों के लिए. Okay. बहुत डिफिकल्ट था. आप कहीं भी अचानक से अगर कुछ चमत्कारिक देखोगे चीज, तो यू नो यू विल आल्सो फील कि यार ये क्या है एक्चुअली ना, एक क्वेश्चन रहेगा. तो मेरे हाँ. लिए इंडस्ट्री थोड़ा सा दूर ही रहे, मतलब दे आर लाइक ऑलवेज बीन इनटू दैट क्वेश्चन कि Got it. सही क्या है, अरे कैसा होगा. हाँ. इट इज नॉट लाइक कि अरे यार ये मतलब वी डोंट वांट हिम, ऐसा नहीं था. बट इट वाज डिफिकल्ट टू यू नो लेट देम अंडरस्टैंड कि बॉस मैं एकदम फ्रेंडली हूँ, आपके जैसा ही हूँ, अरे कम ऑन, ये हाई फाई, यू नो. तो वो कल्चर में आने को थोड़ा टाइम लग गया. वो दैट इज वन ऑफ द. और क्या हुआ करता था कि टाइम भी बहुत बिजी रहा था. हाँ. आई हैज टू परफॉर्म, आई हैज टू ट्रैवल अ लॉट. तो वो भी एक रीजन था कि मैं उतना एक कनेक्शन नहीं बना पाया इंडस्ट्री में. Okay. And I personally think So are you trying to change that now? Are you trying to maybe I'm trying my best to change those things. But अभी एक level पे आप आने के बाद it becomes more difficult. Yeah. Because then you have your own persona, you have your own style, everything. You can't suddenly go out of that shell and become like something else. You can't change. हाँ. your Yeah, personality you to the can't core, change yeah. your personality in that But time. before we go any forward and we're talking about this, I have to talk about the phenomenon that मोहब्बतें लुटाऊंगा became. Yes. Yeah. वो तो मतलब I think ऐसा, एक तो जब से आपने कंफर्म किया कि आप इस एपिसोड पे आने वाले हो, हम लोग ने ना, मैं आपको Sorry, सच बता guys. रहा हूँ, पता है आप लोग ना, मैंने फ़ोन किया था पूछने के लिए आपकी डेट्स के बारे में, एंड देन आई आफ्टर हाफ एन आवर आई केम, आई वाज लाइक ओके ही इज कंफर्म्ड, ही सेड यस. एंड उस दिन the entire office was singing मोहब्बतें लुटाऊंगा, because everybody was like, oh Abhijit Sawant is coming, and we were singing मोहब्बत, we were listening to that. अभी भी इनफैक्ट स्टूडियो सेट करते टाइम जो हमारे कैमरा हैंडल करते हैं उन्होंने पहले प्ले किया लफ्जों में कह ना सकूं, और फिर उसके बाद उन्होंने प्ले किया मोहब्बतें लुटाऊंगा ना. मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ ऐसा ना, कैसा है ऐसा ट्रू एक बार कैसा हुआ ना, मतलब ये बहुत बार हुआ एक्चुअली. ऐसा सामने से आदमी चल के, तो मेरे को उससे देख लिया, कहीं पे बाहर थे हम लोग, तो देख लिया मेरे को, ऐसा देखते आ रहा है, मोहब्बतें लुटाऊंगा, क्रॉस वो चला गया वो. हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं, बस चला गया, मैं भी चला गया. इट्स बिकम दैट काइंड ऑफ ना. तो आप बैठे कल मोहब्बतें चल रहा है, सो काइंड ऑफ वाइब, दैट वाइब हैज एंथम ही बन गया एक हाँ, तरीके का. कैसा. But does it ever happen that maybe you're performing and you forget the lyrics for some reason? Yeah. Then how do you make that up? I am very bad in Do you just let that words. do you just let that verse go then? Yeah. Okay, just carry on for the next verse. Yeah, it has happened a lot of time. Really? अभी भी होता है. आप कहीं मोहब्बतें लुटाऊंगा कभी मोहब्बतें लुटाऊंगा के लिरिक्स भूल रहे हो? Yes. क्या बात कर रहे हो? मैं दोनों उल्टा कर देता हूँ, और हर बार होता है, हर बार. It is unimaginable. मैं हर बार
इन लम्हों का तो फिर मुझे आता हाँ मैं बराबर चल रहा हूँ ओके कितना सुहाना अरे यार पहला अंतरा गा दिया यार पहला सेकंड अंतरा गा दिया पहली बार अभी क्या गाया आई एम सिंगिंग दिमाग के अंदर वो सब चल रहा है यू नो देन बट या आई एम दैट वे वेरी बैड lyrics is bad. So a quick change in gears. You also had the chance to work with Himesh Reshamya. Yeah. Sang Mar Jawa Mit Jawa. Yes. That was the beginning of the Himesh Reshamya craze, right? Yes. Ashik Banaya aapne. I traveled with him. You did? Yeah, I did a full tour in US. For Ashik Banaya? World tour. For Ashik Banaya? Yeah, after Ashik Banaya. Yeah, because Wow. every single song from that movie was a mega hit. Banger, right? आशिक बनाया रिलीज होने वाला था जी. और आशिक बनाया वो गाना आ गया था so those songs were already out. Yeah. Do you do impressions also? नहीं. Okay, that somehow sounded like. हाँ एकदम accurate हो गया. वो थोड़ा रहता है. Sorry, आप बोल रहे थे. Yeah. So मैंने ट्रैवल किया है तो मैं मतलब I have been part of that whole. So like there's like sold out concerts everywhere. my I imagine goodness. people going crazy Oof. for like madness, right? He was Top of the मतलब world. Yeah. माइकल जैक्सन Yeah. इमेजिन कर लो इंडिया का Yeah. भाई I can साहब. imagine. ऐसा क्रेज यार. Dude, you remember every second movie Yeah. was a Himesh Reshamya Himesh movie, Reshamya Reshamya song. Yeah. That voice is so Exactly. embedded in our entire Yeah. like Indian generation. एंड ही उनका ना एंट्री था तो यूएस में हम लोग शो करते थे तो यूएस में दो जो होस्ट थी वो आती थी और बोलते और गाती थी वो मतलब एंड में सब बातें होके तो दूसरे बोले किसका इंतजार ऐसा कुछ तो बोलेंगे तो है ना तो हाँ अब जिसको सबको जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई प्लीज वेलकम हिमेश रेशमिया ऐसा सब बोल के तो हिमेश जी यूज्ड टू कम ऑन स्टेज तो पीपल आर शाउटिंग स्क्रीमिंग सब चल रहा है सब चल रहा है सी द मैन है ना द परफॉर्मर यू नो ही यूज्ड टू कम ऑन स्टेज आज वैसे तो मेरी एंट्री हेलीकॉप्टर से थी लेकिन मैंने कह दिया नहीं मैं मेरे लोगों के बीच में ऐसे ही आऊंगा हेलीकॉप्टर प्लान भी नहीं था. What a great idea. Yeah. It's fantastic. हाँ बेच दिया आइडिया बेच दिया लोग पागल पूरा थिएटर एरिना और हुजूर चालू craze. So did you do then multiple tours with him or was that just one tour? Yeah, we did few of them. मतलब उसके बाद ऐसे कुछ छोटा मोटा किया. Nice. What's Himesh Reshamya like in person if you're talking to him? He's a very fun guy. He seems like a very funny guy. उनकी रील्स देख के तो बहुत ही फनी लगता है वो. नहीं, he's a very nice guy. मतलब बहुत intellectual है. हर चीज में हर चीज में बहुत नॉलेज है. और ये मैं म्यूजिक डायरेक्टरों के कॉम में देखा है पूरी. सब लोग बहुत नॉलेजेबल है यार. मतलब प्रीतम दा आल्सो वेरी नॉलेजेबल गाय. हर सब्जेक्ट के बारे में ही नोज. हिमेश जी आल्सो हर चीज गणित यार ये ऐसा वैसा करने का इधर से इधर डालने का पैसा ऐसा आएगा बाहर. You know all calculation he has all calculation is in mind. Has this ever interested you also composing music? Yeah. Do you I'm sorry. I'm already working do it, on or are you this. working? I'm working on my own songs. I've put my songs on my YouTube channel. Yes. also. Wow. Yes. Yes, Please go check that out. I was checking out your YouTube channel. उस पे नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ है हम लोग लैंडलाइन से वोट करते थे भाई तुम्हारे लिए. तुम रिप्लाई करो ना हमें एक बारी मैसेज. इसी बात पे we'll take a quick break. We'll be right back after this very short break. So please stay tuned. We are in talk with Abhijit Sawant. Hey, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On the Habit Coach podcast, Ashton answers a listener's question on how one can make time to exercise in their busy working day. On All Things Policy, Malati Renati, Sachin Kalbag and Soumya Nandan talk about the role played by society, government and markets in elderly care. And on Explain Like I'm 10, Meghnad is joined by author A.K. Bhattacharya and stand-up comedian Puneet Pania. They try to answer the question, what is socialism? Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some exciting stuff for you. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn.
If you like our shows, spread the word, tell your friends, and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Cash Free Payments and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. All right, and we're back. Snehal, go ahead. Oh, I just wanted to ask कि अभी हम लोग composers के बारे में बात कर रहे थे. Yeah. You mentioned about Pritam Da, you mentioned about Himesh Reshammiya ji. Yeah. And you mentioned कि आप अपने भी कुछ नए गाने बना रहे हो. And recently you've dropped a Marathi song also. मैं actually, that is actually in Ganpati. But now I'm working on my own songs because this is actually a good time to become, to make your own songs. Yeah. जब even जुनून भी आया था तो जुनून के टाइम में मैंने कंपोज किए थे गाने. तो मैं सोनी के पास गया भी था. तभी हमने डिसाइड किया कि बेटर है कि यार तू मतलब म्यूजिक डायरेक्टर को ही दे दे. तभी अमित त्रिवेदी से भी टुक जुनून. तो तब से कहीं पे ये था कि म्यूजिक डायरेक्शन में जाना चाहिए, करना चाहिए म्यूजिक. एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट. बट आई एम समबडी, हाउ यू सेड ऑल्सो ना, कि कमर्शियल जो आइडियाज है, आई एम नॉट डिनाइंग दोज आइडियाज, बट आई डोंट वांट टू लूज मी, तो वो मैं करके आई एम मेकिंग माई ओन म्यूजिक. एंड आई एम नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन दैट म्यूजिक ऑल्सो कि हिट होना ही चाहिए या चलना ही चाहिए. But good kind of music, good musicians should work in my song, and अच्छा quality का music हो. That is I am right now doing. Great. तो अभी हमें मतलब आपका बहुत जल्द आपका एल्बम ऐसा आ जाएगा. Hopefully song तो definitely बहुत जल्दी आ जाएगा. Okay, great. Okay, look forward to that. Looking you heard it here forward. first. Yes. Exclusive. Yes. Of Last thing we want to Pop end with is if you could please point us to your top 5. Oh, you're laughing though. मेरे को तो बहुत. No, not at all. Very friendly. Arey, you see, all the questions have been very nice. Top 5 like favorite singers growing up and also currently. So like आपके पहले क्या थे top 5 before you became a musician and then top 5 after becoming. मतलब ऐसा कुछ ranking नहीं है, Not but ranking like singers, some of your favorites, musicians that you look up to, that you looked up to, जिनके साथ आप काम करना चाहो. पहले के तो मतलब सब legends को पकड़ ले. This is not कोई एक है या मैं किसी का नाम लूँगा. एवरीबडी इज़ नाइस. आज तक एवरीबडी जो पॉपुलर है सब भी हम जानते ही हैं. बट जो लोग अभी आ रहे हैं, शाश्वत एक है. अच्छा. शाश्वत इज़ अ वेरी ब्रिलियंट सिंगर. तो वो है. ऑफ कोर्स निकिता गांधी, जॉनिता. उन लोग का म्यूजिक. अभी शिल्पा राव. Shilpa Rao's great. Upcoming music is absolutely brilliant music. Okay, wow. अभी जो PS2 में भी आया है, it's a lovely song by रहमान साहब. तो वो है. Nice. They are the अभी है मतलब जो लिसनिंग पॉइंट में है, जो बड़े ऐसा आगे जाके बैंगर्स पे बैंगर्स ड्रॉप करने वाले हैं. और कोई मुझे आप लोग इंस्टाग्राम वाले रहेंगे ना सिंगर तो बताओ, तो इवन आई विल आल्सो फॉलो. पर आप समझ नहीं पाए उन्होंने सटल तरीके से ऐसा क्या, ये जो एक्चुअली यार रॉन्ग वर्ड पड़ गया यार. ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट बहुत सारे लोग आजकल दुनिया मतलब हमें आजकल यूट्यूब नहीं जाना पड़ता है, टेलीविजन नहीं जाना पड़ता. आज इंस्टाग्राम पे कौन चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या है, that is how the world finds. The world is there. अभी वैसे ही चलना पड़ेगा यार. मतलब And composers, if you had to talk about your favorite composers working right now in the industry. अभी के टाइम में डेफिनेटली प्रीतम, रहमान साहब, ये सब लोग तो है ही. मतलब रहमान साहब तो सबकी लिस्ट पे है. वो लाइक ही इज वन एपिटमी जिनके साथ सबको. I was actually very lucky to see him perform once, और वो भी ऐसा by chance. U2 का कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई में. So I had gone for that, and उस टाइम पे रहमान साहब ने U2 के साथ कोई गाना किया था. So he did a surprise performance on the concert. Of course, That's amazing. Yeah. तो पैसा वसूल भी नहीं भाई मेरी उस टाइम. कमाई होगी मेरे तो. The girl that I was dating उस टाइम पे, she had a couple passes to that वो. तो उसने बोला मैंने U2 का कोई गाना नहीं सुना, if you want to go तो you go. I was like okay great, I'll go. मैंने Swimming, passes लिए, ओला करी. Are you big on attending concerts as an audience member? Were you ever big on that? मैं ना एक्चुअली जितने भी कॉन्सर्ट मैंने ट्राई किया है, आई नेवर लाइक दोज कॉन्सर्ट्स. एज मतलब एक म्यूजिशियन
point of got view. it. Yeah. अभी तक इंडिया में हम लोग उस तरह से साउंड बना नहीं पाए हैं, तो इंडिया में True. थोड़ा डिफिकल्टीज है अभी. कंप्लीट होल इक्विपमेंट जो किसी का भी शो वो इतना मतलब बाहर जाके शायद ज़्यादा अच्छे रहेंगे. Okay. या Nice. We can wrap up now. Yeah, I think we're about good. हम लोग ने सब बातें कर लिया आज. अपन लोग ने सब बात कर लिया है और आज. कुछ If- हो रह गया Yeah, क्या? if you had to look back at your career, या and if you could, other than of course winning Indian Idol, if you could point back to one moment in your career where you were like, "Yeah, this is the moment that I became a musician for, that I became a singer for." Do you have one of those? If you could share that. एक्चुअली जब फर्स्ट सॉन्ग आया था जी. दैट वाज द मोमेंट वेयर क्योंकि इंडियन आइडल से पहले भी मैं घर पे आई हैड नो ड्रीम्स अबाउट कि प्लेबैक सिंगिंग करना है. मुझे लगा था कि मैं एल्बम्स बना के आई कैन डू समथिंग. तो जब फर्स्ट एल्बम हाथ में आया ना तो वो फीलिंग बहुत कमाल की थी कि यार Absolutely. कुछ कर लिया लाइफ में. अपना होल्डिंग देखना या अपना Yes. कैसेट या सीडी आपके हाथ में होना. You're right. I imagine that goes a long way for a lot of musicians, right? Because they don't have their own albums. Yeah. Yeah. Being able to, so you know, tell people, okay, yes, I'm a musician, I'm a singer. They're like, oh, have you played something? Can we listen to some of your work? Yeah. Yeah. You never have something to show them, right? But Yeah. having your own album to show Yes. people and to be able to go there around must be such a prideful moment. मुझे कितना Yeah. a lot of self pride. I मैं imagine. एक बार मायामी में ऐसे घूम रहा था तो बहुत पुरानी बात है, मतलब 2007-8 की बात ही है. तो वहाँ पर एक म्यूजिशियन मस्त गिटार प्ले कर रहा है, गा रहा है, और फिर तो आई लाइक हिज म्यूजिक. तो मैं ऐसे खड़े रह के, थोड़ा नया म्यूजिशियन बना ही था जी. तो और ज़्यादा है ना यार, मैं भी कलाकार तू भी कलाकार, खड़े रहेंगे ऐसा वाला. तो मैं करेगा support तेरे को. तो खड़ा है तो उसने फिर अपना एल्बम निकाल के दिया, यार दिस इज माय एल्बम, Wow. लिसन टू दिस. तो Wow. बोला अरे वाह सही यार. That's great. आई मतलब तभी Wait, रियलाइज हुआ कि हाँ. Did you ever hear that album? या Okay, good. Because I imagine big artists just like, हाँ ठीक है, one more नहीं, CD. नहीं, That is that man. वो तभी तो हम लोग जाते थे, और मतलब वो प्लैनेटम या वहाँ पे पता नहीं, आई डोंट Planetum, yes, रिमेम्बर of क्या course. नाम था वहाँ पर. कुछ तो अच्छा ही नाम था एक स्टोर्स का. तो वहाँ पे जाके बहुत सारी सीडीज कैसेट्स उठा के लेके आते थे, एंड टू जस्ट लिसन डिफरेंट म्यूजिक. वो एल्बम्स हाँ. कलेक्ट करने का ना एक अलग यार, क्रेज होता था, पता है. Yeah. मतलब मैं तो जब बड़ा हो रहा था तो ये क्रेज थोड़ा, मतलब वो एल्बम वाला एरा थोड़ा जा रहा था. Yeah. बट माई मामू एक्चुअली वाज अ ड्रमर एंड अ सिंगर. Yeah. तो दिल्ली में एक बैंड है 100 ऑक्टेन करके, उसके ड्रमर और सिंगर थे, एंड उनकी वजह से मम्मा को बहुत शौक था इन सब गानों मतलब म्यूजिक का बेसिकली. एंड शी यूज्ड टू गो एंड कलेक्ट दीज थिंग्स. Yeah. हमारे पास इतने बड़े रैक थे जिनमें कैसेट्स पड़ी हैं और ये और वो, एंड शी यूज्ड टू बी सो पैशनेट अबाउट दोज थिंग्स. मुझे जितना म्यूजिक का शौक है वो मुझे उनसे ही लगा, एंड बिकॉज ऑफ हर आई वाज आल्सो लाइक कि ओ मैं एमजे का ये वाला एल्बम ले लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, एमजे का बुक खोल के उसकी लिरिक्स याद कर रहा हूँ. और ये तो वो एल्बम वाला एरा, आई थिंक एल्बम इज वन थिंग जिसने अपना इम्पोर्टेंस अभी तक लूज नहीं किया है. जी. लाइक यू डोंट नो कि तुम अभी उस टाइम कलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल टू ड्रॉप एन एल्बम इज स्टिल सच अ बिग थिंग. Very big thing. क्योंकि पहली चीज तुम म्यूजिक से पूछ रहे हो भाई, म्यूजिशियन से पूछते हो कि एल्बम कब आ रहा है, राइट? तो हम लोग इवन मतलब आई रिमेम्बर मैंने अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को गिफ्ट एक कैसेट ही दिया था. So, you know, Oh, wow. हाँ मतलब वो कैसेट देना या Do you सीडी remember what देना, cassette? या कोई रोमांटिक गाने का हाँ, एक तभी आया था नया, तो वो एक गिफ्ट भी होता था. मुझे एक बार एक फ्रेंड ने बताया कि मतलब उसकी दादी जो थी वो बहुत देखती थी इंडियन आइडल, तो उसके बर्थडे पे उसने मेरा सीडी दिया था उसको Oh, गिफ्ट. wow. या That's nice. या सो वो एक कल्चर था ना म्यूजिक का. हाँ, दैट कल्चर हैज गॉन लाइक यू नो. और वो जो To एक some extent, yes, yeah. absolutely. अब रील भेज देते हैं. अब रील भेज अब वो ऐसा करके नमस्ते ऐसा करके हैप्पी बर्थडे वाला ऐसा रील गोल भेज मिलता देते हैं. रील आ जाएगा. हाँ. So yeah, it is like that. But keeping the culture of music alive in India, and go check out his YouTube channel. आप एक बार अपना YouTube channel का नाम एक बारी ऐसा मेंशन कर दो. अभिजीत सावंत ऑफिशियल, प्लीज जाइए. Yes. Yes, please subscribe इस to that वीडियो के
इस वीडियो के YouTube टाइटल में हम लोग एंड उनका इंस्टा में भी हाँ अभी बताएंगे अभी सब बताएंगे धीरे तो भी इस YouTube पे तो डिफिकल्ट बाबा आजकल आजकल एक व्यू का भूख Yeah, basically just follow him Just everywhere. follow him everywhere. Across social media, on YouTube, On YouTube. on Twitter, wherever you can find. अभी ज्यादा लग रहा है मेरे को लाचार लग रहा हूँ हम मैं लोग सब लिख देंगे रे टाइटल सब। में सब लिख देंगे सब। टाइटल में इनका YouTube चैनल टैग रहेगा डिस्क्रिप्शन में इनका Instagram चैनल टैग रहेगा Yes. और हमारा भी रहेगा Title of the video: Follow Abhijit Sawant. मेरे Everywhere. को अभी वो तो एकदम वो दुष्काल तो क्या मतलब जब एकदम ड्रॉट आता है ना सब तो एक बेचारा फार्मर रहता ना क्या है चावल मिल रहा है डिस्ट्रॉट पूरा But yes guys, thank you Abhijit for doing this. Thank you for being this sweet, taking out time to do this podcast with us. And we'll see you next week with another awesome episode of Pop Rap.